welcome to Kitab Writing Publication. So today we are having Ankita Singh ma'am with us. This episode is going to be very interesting because आज यहाँ पे conversation होने वाली है between the people sharing same name. So it's Yeah, of course going to be very interesting. Firstly, I would like to congratulate you, ma'am, for having your book published with us. So how are you thank feeling, you. ma'am? I'm feeling very great because it's time that on very quick note, Divya ma'am has published this book. Thank you, Kitab Writing Publication, for publishing my book on English tenses. थैंक यू सो मच मैम मैम आपकी बुक इंग्लिश टेंसेस पे है सो आई वुड लाइक टू आस्क यू लाइक आर यू अ टीचर और यू डू थिंग्स लाइक दैट Yeah, I am teacher also, and prior to this also, I have written book Tenses, the Roots of English Grammar. So in that book, after writing that book, I thought that I have to write the concepts in more simpler way that a student should understand more easier. That's why I have came with the new book with Kitab Writing Publication, दैट्स अमेजिंग Learning Roots of English Tenses. ओके सो मैम आज का अगर हम लाइक आज के टाइम में देखें सो देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनको इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है इवन व्हेन दे नो कि हाँ इंग्लिश का लाइक नॉर्मल जो ग्रामर है दे नो अबाउट इट स्टिल दे फील अ लिटिल बिट ऑफ लाइक कॉन्शियस फीलिंग आती है कि हाँ उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता सो व्हाट वुड यू लाइक टू से टू देम See, English is the universal language. Wherever you will go, you have to speak in English. Either if you have to connect North India with South India or either any part of world, you should know the English. English is a second language also with Hindi speaking states, and it is also the universal language. So it is priority of every school to give the English speaking course to students. I think it. Yeah, that's something very true. But I would like to Yeah. ask one thing. Like in today's world, if we see there are people around us, जो कि they are like judging the people on the basis of if they are able to speak English or not. But we stay in a country like India, and India is a place. अगर हम अपनी obviously languages देखें, we are very diverse with it. But then why Yeah, is India there is so much diverse obsession country. with English? Yeah. नो प्रॉब्लम। यहाँ तो कहते हैं ना कि चार कोस पे बदले पानी और चार कोस पे बदले वाणी, शायद ऐसे ही कुछ है, मुझे Yes, yes, बिल्कुल. पूरा नहीं याद आ रहा है, बट हाँ. ये कहते हैं तो एवरी लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट, आइदर इट इज हिंदी और इंग्लिश और द रीजनल लैंग्वेजेस। क्षेत्रीय भाषाओं का भी उतना ही प्रभाव है जितना इंग्लिश का है, हिंदी का है। तो मुझे लगता है कि हर भाषा को, इनफैक्ट इफ यू नो मोर लैंग्वेजेस, you will be a it will be beneficial for you to interact with any part of the country easily. I think it. Yeah, that's something very nice, ma'am. Of course. But there's a kind of feeling in the people कि हाँ अगर तुमको इंग्लिश आती है तभी आप कुछ you are able to stand, you'll be listened. So is it right or do you think there should be अगर कोई हिंदी भी बोल रहा है तो उसको भी उतनी ही इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए? What do you बिल्कुल think? मिलनी चाहिए, जजमेंटल नहीं होना चाहिए ना, जजमेंटल नहीं होना चाहिए। बिकॉज किसी के चेहरे पे नहीं दिखा है कि उसको क्या आता है क्या नहीं आता है। इन डीप कोई इंसान कितना है आप कैसे बता सकते हो? सिर्फ एक लैंग्वेज के बेसिस पे आप जजमेंट नहीं कर सकते। Yes. नॉलेज इज अ वाइड प्रोसेस, को जजमेंट नहीं उसका किया जा सकता है। That's true. Like we are talking about knowledge. So what for you is real knowledge? Real knowledge you can grasp for any part of world. Okay. Observation also. We are interacting with each other. Yeah. Observation is the best thing to learn something. Observation, classroom interaction, everything comes under the knowledge. आप जहाँ भी जाओ, आप हर स्टेप पे लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते हो. Yes. Every single day of life is a teaching. I think so. Yeah, that's true. Yes, it is. Ma'am, like you're saying that every single day in life is basically a teaching to us. So, would you like to share with us like the three biggest learnings from your life? Basically, I'm a writer. I have written 42 books. Yeah. And every I in fact in writing process I learn daily, something I learn and teach. It is the daily basis work, because when you are a writer your mind is very wide. You become the
You have to grasp every little single thing you have to know before writing. So knowledge comes from every part, every interaction. You can gain something. यस। ओके मैम। मैम जैसे आपका भी नाम अंकिता है एंड आई एम आल्सो शेयरिंग द सेम नेम, सो आई वांट टू You are also आस्क यू। Ankita Singh. I am also Ankita Singh, या and I'm very happy. Yeah, first time we both are having the conversation, and it's very nice that we both are sharing the same name. यस मैम, Congratulations to you also, and congratulations to I also. थैंक यू सो मच मैम। so ma'am, what do you think, like what is the meaning of this name and how has it influenced you? अंकिता मीन्स टू राइट, यू नो अंकिता का क्या मतलब होता है, कहीं कोई चीज अंकित करना, उसको कहीं उस चीज की कहीं छाप छोड़ना। अंकिता मीन्स टू राइट। ओके। Okay, या that's something amazing. Like I like jab when I got to know that I have to interview you, there obviously was a very kind of fascination into me. बहुत ज़्यादा curiosity थी कि हाँ सेम नाम वाले हैं, तो वो थोड़ा जानने का कि हाँ जैसे like obviously कहीं कहीं पे हम सुनते हैं कि अगर कुछ नेम के लेटर्स होते हैं या आपका जो बर्थ डेट होता है उसके हिसाब से लोगों की कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करती है। क्वालिटीज मिल जाती है, या क्वालिटीज मिलती हैं। so yes, so I was all like kind of wondering कि and I was looking forward कि हाँ हमारे में क्या similarities है. So while I was talking to you, the first thing I obviously found is writing, of course, because it is relating both of us. And even अगर अभी हम बात भी कर रहे हैं, so that is all because of writing, because it's यस। an interest to both of us. So what else are you interested in? राइटिंग एंड चैरिटी वर्क्स। Yeah, आई एम इन that's also आई something एम इन in common. Okay. सेम सेम। नाउ व्हाट चैरिटी यू डू, टेल मी। Ma'am, I have worked as a volunteer in some of the NGOs, and I like ओके teaching the students. Like, of course, right now I'm only in my master's, so I don't have that ओके much ओके। privilege to teach students in real sense. स्टूडेंट्स। So I just teach them with the basis of like the NGOs. So whenever I get the opportunity, I go there and just teach them. Apart from this, I also like enjoying my birthdays and my special days with the NGO children. So I do that. Very nice. And I do the charities donating to zoological gardens. I Yeah, have donated in Tamil Nadu Zoo and Lucknow Zoo and Andhra Pradesh Zoo and Nandankanan. And I just feed small animals like dog, cats, and that's cows, monkeys also. I am in habit of doing these charitable works, and I have also donated in old age homes. I like to do something for old peoples. that's that's It something. is good, na? It is a charity. The work of charity is nice. It just spread goodness and spread happiness. Yeah, Motto of Divya ma'am. I'm following that the same motto. She is my that's mentor, amazing. and she is my mentor, and many things I have learned from her. Basically, that charity feeling she has given me. So nice, ma'am. That's kind of an honor to hear this from you. Thank you so Yes. much for this honor. Um, Okay, ma'am. So, I would like to know more about you. Like, apart from writing, what else do you do? Like, do you like music or that kind of thing? Actually, I don't get time for music because my Okay. daily hobby is writing, and daily hobby, Yeah, I can say daily work is writing. So if I have to complete a book, I it will take 1 week. So I have to give that time in book. So I don't have time for music and all. that's okay. These That are the things. okay. So मैम जैसे आपने राइटिंग स्टार्ट कैसे करी? हाउ डिड यू गेट इनटू इट कि आपको कब से इंटरेस्ट आना शुरू हुआ? कब से आपने लिखना शुरू करा? I'm writing from 11 years of age. Okay, that's a From big sixth time. standard, I started writing, Yeah, and for now till now, 42 books I have told you prior also has been published. And before it, when I was in my MEd and BEd classes, then that in that time also I have written research papers that has been published in international and national journals. So from that time, I'm in habit of publishing books and research papers. These all things are around okay, 20 research papers I have written, and they are being published in ma'am. international journals also.
That's something very amazing. Like I am also from like right. I was always interested in doing B.Ed and also M.Ed, but then right now I'm in my MSc, so I didn't get that chance to Okay. like go with that B.Ed. But I'll see in future if I could do it. But ma'am, Yeah, sure. जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन इज अ फील्ड लाइक देयर्स आपको क्या लगता है कि जो एजुकेशन अभी चल रही है, जिस तरीके का सिस्टम है, इज इट रियली लाइक फ्रूटफुल फॉर द स्टूडेंट्स? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अब तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, न्यू पॉलिसी आ गई, इसमें काफी सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं और यस। काफी उसमें न्यू थिंग्स देखने को मिलती है। इंटरैक्टिव क्लासेस होने लगे हैं। पहले, आज से पहले वर्चुअल क्लासेस कहाँ होते थे? कोविड से हाँ। पहले तो वर्चुअल क्लासेस नहीं होते थे। तो यस। एक तरीके से ये न्यू जनरेशन के लिए बोन है कि वेयर वेयर यू आर सिटिंग यू कैन स्टार्ट योर क्लासेस। यस। आई थिंक यू हैव आल्सो गिवन टेकन द ज़ूम क्लासेस इन कोविड टाइम। यस। यस, बिल्कुल, हाँ। या तो ये तो एक तरह से एक बोन है, ब्लेसिंग है कि पहले आपका सिर्फ टीचिंग का और लर्निंग का पीरियड सिर्फ एक 5 टू 6 आवर्स रहता था जब आप क्लास में होते थे। बट नाउ यूट्यूब्स आर देयर एंड मैनी एप्स आर देयर, लर्निंग एप्स, बायजूस एंड ऑल। सॉरी, मैं किसी का वो एडवर्टाइजमेंट नो, नहीं नो, कर रही हूँ। या या दैट्स फाइन। बट मैं नाम लिख सकती हूँ कि इस तरह की चीजें जब से आई हैं तो या। काफी सारा इंटरैक्टिव क्लासरूम स्टार्ट हुआ है, उससे न्यू लर्निंग होती है और मतलब आप किसी भी मोड में पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट व्हाइल ट्रैवलिंग आल्सो यू कैन स्टडी। यस। आप कोई बाउंड्रीज की वो बाउंडेशंस नहीं है कि आप अगर किसी एक सिटी में हो, एक ही जगह आपको बैठ के पढ़ना है। आप कहीं भी, अगर आप हिल स्टेशन पे घूमने भी गए हैं तो वहां भी अगर आपकी क्लास है तो आप उसको ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास टैब है, टैब तो सभी के पास होता है, लैपटॉप है, टैबलेट है, तो उसके थ्रू आपकी क्लासेस हो सकती है। तो एक तरह से ब्लेसिंग ही है ये न्यू एरा का है, अचीवमेंट है और आगे आने वाले टाइम में और ऐसा ही होगा। मैम, जैसे हम बात कर रहे हैं अभी एडवांसमेंट्स की, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की। सो मैम, जैसे एआई का आजकल हम काफी रोल देख रहे हैं, एंड इवन वी आल्सो सी कि हाँ, ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आर, देयर आर अ लॉट ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स व्हिच आर टीचिंग। सो व्हाट डू यू यस। थिंक, कैन these platforms basically take the place of a teacher, लाइक नो। क्लासरूम लर्निंग में और ऑनलाइन में? लाइक क्या वो एकदम जो बॉन्डेजेस हैं वो बिल्कुल खत्म हो पाएंगी, कि बिल्कुल जो हमारी ऑनलाइन टीचिंग है वो एकदम क्लासरूम टीचिंग की तरह हो पाए? इज इट पॉसिबल? नहीं हो सकती, क्योंकि रियल टीचिंग इज अ रियल टीचिंग एंड वर्चुअल टीचिंग इज अ वर्चुअल टीचिंग। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन देम। टीचर की पोजीशन कोई नहीं ले सकता, बिकॉज टीचर, वन टीचर इन क्लासरूम ऑफ द 40 स्टूडेंट्स, दे टीच ऑन बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। वो सब देखते हैं कि हर बच्चे को कैसे टाइम देना है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस द बेसिक पॉइंट ऑफ द टीचिंग। Okay, because now teaching is not a teacher center, it is a student center, learning center teaching होती है। तो आपको उसमें ये देखना होता है कि हर स्टूडेंट ने वो चीज ग्रैस्प की है कि नहीं है, वो फीडबैक हमको प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्लासरूम एवेल्यूशन होता है, एक समेटिव एवेल्यूशन होता है जो आपके फाइनल एग्जाम्स के टाइम होता है, बट वो हम यस। नहीं देखते। हम क्लासरूम एवेल्यूशन देखते हैं कि बच्चे ने जैसे सीखा है तो क्या उसका तुरंत उसको उसका उसको लर्निंग उसकी हो रही है कि नहीं हो रही है। नहीं होती है तो उसको दोबारा से वो चीज़ सिखाई जाती है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो टीचर की जो पोज़ीशन है वो तो कोई भी नहीं ले सकता। वर्चुअल क्लासेस आर द बून, बट टीचर्स आर द रियल ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ। या। सो लाइक वर्चुअल क्लासेस आर जस्ट अ काइंड ऑफ लाइक, इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ कि हाँ, अगर आपको कुछ ऑप्शन नहीं है मिनिएचर, तो वहां पे भी आप पढ़ सकते। मिनिएचर, यस। इट इज़ अ मिनिएचर ऑफ द रियल टीचिंग। यस। ओके मैम। यस। सो मैम, जैसे हम एजुकेशन की बात करते हैं तो आई वॉज रीडिंग अ बुक अ फ्यू डेज बैक, एंड देर वॉज इट वॉज अबाउट माइंड। सो वाइल आई वॉज रीडिंग इट, इट वॉज रिटन इन टू इट कि जो माइंड होता है इट हैज अ नेचर लाइक फ्री होना चाहिए, बट वेन वी स्टार्ट जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से है कि उसकी वजह से माइंड जो है वो पूरा बाउंडेड हो जाता है, जिसकी वजह से काफी सारी लाइक जो क्रिएटिविटी है स्टूडेंट की, जो कंसंट्रेशन है, वो काफी सारी चीजें दे लैक। एंड देन
धीरे धीरे करके जो हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस हैं वो सारी डेवलप होती है। लाइक एज अ चाइल्ड हमारे अंदर कोई नेगेटिव इमोशन नहीं होती, वी आर जस्ट हैविंग लव एंड एंगर, दीज आर द ओनली टू इमोशंस जो हमारे अंदर होती है। बट जैसे जैसे आगे जाते हैं, लाइफ हैपेंस, हमें सिखाया जाता है घर में कि हाँ ये लोग हैं, आपको ये रिलीजन है, ऐसा है वैसा है, तो कहीं ना कहीं वो जो माइंड की जो फ्रीनेस होती है वो गायब होती जाती है, और उसकी वजह से फिर हमें बहुत सफर करना पड़ता है। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या ऐसे हम चेंजेस कर सकते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जिसकी अब वजह से। इसके लिए यस। अब इसके लिए हमको प्रिमिटिव एजेस में जाना पड़ेगा, वैदिक काल में। पहले क्या गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन होता था, जहाँ पे नेचुरल सेटिंग्स में टीचिंग दी जाती थी। लर्निंग एंड टीचिंग वाज हैपनिंग इन द नेचुरल सेटिंग्स, कि यस। एक गुरु होते थे और उनके शिष्य होते थे, वो एक पेड़ के नीचे पढ़ते थे, वो हाँ। नेचुरल सेटिंग्स में। तो वो क्या होता था, माइंड फ्री होता था, सारी विद्या का जो ज्ञान होता था वो एक नेचुरल इन्वायरमेंट में दिया जाता था। उससे योगास की टीचिंग दी जाती थी। अब तो योगा जो है एज ए करिकुलम इंक्लूड कर लिया गया है, लेकिन कुछ साल पहले ये नहीं था। अब तो बिल्कुल। इंटरनेशनल योगा डे होता है 21 जून को, पहले इससे पहले कहाँ होता था? आज से यस। आई थिंक 15 ईयर्स पहले नहीं होता था। यस मैम। हाँ, तो इस टाइप से तो पहले तो कहीं ना कहीं जो नेचर के थ्रू जो हम सीखते हैं, तो वो परफेक्ट लर्निंग होती है। आप जब आप एक टूर पे जाते हो तो वहां पे आप ज्यादा एक्सप्लोर करते हो। आप अगर मान लो आप जैसे किसी प्लेस पे गए, या। आपने सपोज कुतुब मीनार आपको पढ़ना है, आपने अपने चैप्टर में पढ़ा, तो आपको इतनी नॉलेज नहीं होगी। आप वहां जाके उसको देखोगे तो आपको उसमें ज्यादा उसके बारे में समझ में आएगा। तो रियल टाइम लर्निंग वही होती है जब हम अपनी आई से उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं और नेचुरल सेटिंग्स में पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं एक नेचुरल सेटिंग्स में भी टीचिंग होनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें हम अपने पास से भी यहाँ पे हमको ऐड करना चाहिए फ्यूचर में। यस। सो मैम, आपको क्या लगता है जो सब्जेक्ट्स अभी इंक्लूडेड है इन द सिलेबस ऑफ द स्टूडेंट्स, लाइक 12th तक का प्रॉपर अगर सिलेबस देखते हैं, या हम जो भी सब्जेक्ट्स देखते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि ये सब्जेक्ट्स एक्चुअली में, जैसे अगर मेरे चाइल्डहुड में जाऊं तो मुझे काफी सारी चीजें ऐसी लगेंगी जो मुझे ऐसा लगता है कि सीखने की जरूरत भी नहीं थी, और बेसिकली वो इस तरीके से भी नहीं सिखाया गया कि मैं उसको कहीं जाकर के यूज कर पाऊं इन माई लाइफ। सो व्हाट डू यू थिंक कि किस टाइप का करिकुलम होना चाहिए, किस टाइप के सब्जेक्ट्स होने चाहिए कि बच्चे सच में कुछ सीखे, खुद को एक्सप्लोर कर पाए, ना कि सिर्फ बंधे रहे। टीचिंग हमेशा एक्सपेरिमेंट मेथड पे बेस्ड होनी चाहिए ओके। और प्ले मेथड पे बेस्ड होनी चाहिए। जो एक मॉन्टेसरी क्लासेस होती है, प्ले मेथड पे उनकी टीचिंग बेस्ड होनी चाहिए। और एक्सपेरिमेंटल मेथड, जैसे कि जॉन डेवी ने कहा था प्रैग्मेटिज्म में, उसके प्रवर्तक भी रहे हैं, तो वो कहते हैं कि टीचिंग जो होती है, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ टीचिंग पे ज्यादा जोर दिया था। लेक्चर मेथड नहीं होना चाहिए। अगर हम क्लासरूम में जाएंगे सिर्फ लेक्चर देके आ जाएंगे तो क्या होगा, वो यहाँ माइंड से नहीं, यहाँ घुसेगा, यहाँ से बाहर चला बिल्कुल। जाएगा। तो एग्जैक्टली द सेम सिचुएशन यही होती है कि टीचिंग हमेशा एक्सपेरिमेंटल मेथड है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, ऑब्जर्वेशन मेथड है, उस पर बेस्ड होनी चाहिए। अगर हम इंग्लिश का कोई लेसन पढ़ा रहे हैं और वर्ड मीनिंग सिखा रहे हैं, तो अगर हम उसको नॉर्मल बोर्ड पे लिख रहे हैं तो शायद उससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अगर हम उसका कोई गेमिंग के थ्रू सिखा रहे हैं, या कोई फ्लैश कार्ड के, जैसे फ्लैश कार्ड है मानी सपोज है, तो उसको हम दिखा के उसको कर रहे हैं, तो उससे ज्यादा लर्निंग होती है। इस तरह की चीजें या। टीचिंग की मेथड में, स्पेशली जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, यस। यस। टीचिंग हमेशा ऑडियो विजुअल एड से करनी चाहिए, कि उससे ज्यादा इफेक्टिव होता है। अब समझ लो कि जैसे कोई लेसन पढ़ा रहे हैं, मान लो कोई गेम है, और जैसे कोई चैप्टर है आउटडोर इंडोर गेम्स का, तो अगर हम मान लो क्लास में बच्चों को एक 10 मिनट का टाइम दे दें, कुछ खिला दें इंडोर गेम्स आउटडोर गेम से, तो लर्निंग ऐसा फन हो जाता है। जब वो फन के द्वारा वो कोई चीज सीखते हैं तो उनको वो चीज ज्यादा समझ में आती है। बिल्कुल। Okay, ma'am. It was a very interesting answer, and I really loved it. Ma'am, my next question to you is that yeah. So, what is a teacher for you? Like एक teacher का एक student की life में क्या role होता है? एक हिंदी का श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, Yes. गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु को तो हमारे ग्रंथों ने जो है ईश्वर के समान दर्जा दिया है, बल्कि ईश्वर से ज्यादा ही दर्जा दिया है। कहते हैं ना, गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए,
बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो जब साक्षात गुरु को गोविंद से ऊपर का दर्जा दे दिया गया, तो फिर मुझे तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि टीचर की क्या रोल है हमारी सोसाइटी में। टीचर का तो माता पिता और टीचर का जो स्थान है वो सर्वोपरि होता है, सबसे ऊंचा स्थान होता है। बिल्कुल मैम। बट मैम जैसे नौ ग्रह होते हैं तो नौ ग्रह में भी बृहस्पति जो होते हैं, जैसे आप एस्ट्रोलॉजी देखो हाँ तो हाँ नौ ग्रह में बृहस्पति को भी सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है। ऐसी ऐसे ही टीचर की भी रोल हमारी सोसाइटी में है। मैम, जैसे आप बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि एक टीचर का रोल बहुत बड़ा होता है हमारी किसी भी सोसाइटी में कहीं पर भी देखें तो। जी। बट अगर हम देखें आज की टाइम में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि टीचिंग को एक ऐसे देखते हैं लाइक एन ऑप्शन कि हाँ अगर कुछ नहीं हुआ तो टीचर तो बन ही जाएंगे। तो ये वाली जो एक मेंटालिटी है ये बहुत लोगों में होती है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि इसकी वजह से वो अपना जो रियल फर्ज है जो हमने जो टीचर्स के लिए एक इज्जत, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्ट खो रही है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? हाँ, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई भी प्रोफेशन छोटा नहीं होता है। बिल्कुल। टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन। यस। कोई भी प्रोफेशन है, और सिर्फ जो है क्लास में एक ओरिएंटेशन यही नहीं होना चाहिए कि हमने 12th पास कर लिया, उसके ग्रेजुएशन कर लिया, पीजी कर लिया, उसके बाद हमको जॉब करना। लाइफ को एज अ ऑल राउंड डेवलपमेंट देखना चाहिए कि या हर पर्सपेक्टिव से। यही नहीं है कि सिर्फ हम, अगर हमको जॉब मिल गई है और हमारा जो है संस्कार अच्छे नहीं है, तो नो नीड। अगर आपको कितने भी लाखों का पैकेज मिल रहा है, इट्स जस्ट अ वेस्ट। अगर हम अपने से बड़ों की इज्जत नहीं कर पा रहे हैं, तो इट्स जस्ट अ वेस्ट। अगर हम इन ह्यूमन हैं, हमें एक ह्यूमन कॉज नहीं है, हम किसी, क्योंकि अर्थ इज नॉट जस्ट अ होम ऑफ ह्यूमन बींग्स, इट इज फॉर ऑल द बींग्स। अगर हम और लोगों की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, किसी के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आई थिंक वो जो लाखों का पैकेज है ना, वो एक धूल के समान होता है। तो इसलिए जो है हर प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो भी है सोसाइटी में, क्योंकि जो नेशन की जो जीडीपी बढ़ती है, तो सिर्फ एक प्रोफेशन से थोड़ा ना बढ़ती है। जब सब सारे सिटीजन सब वर्क करते हैं, तो जो नेशनल जो जीडीपी की ग्रोथ होती है तो सबसे होती है। हर किसी का इस देश के, उसमें कुछ ना कुछ छोटा छोटा योगदान है। बूंद बूंद करके सागर बन जाता है। बिल्कुल मैम। या सो मैम, जैसे हम बात कर रहे हैं अभी टीचिंग की, बट अगर हम देखें तो एक टीचर का कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली अगर हम देखें तो किसी भी इकोनॉमी में आई थिंक सबसे ज्यादा होता है। बिकॉज जिस भी आप कोई भी करियर देख लो, कुछ भी देख लो, तो एट द एंड टीचर्स आर द वन, राइट, जिन्होंने उसको उतनी बेसिक नॉलेज भी दी है कि कोई अपने आप को एक्सप्लोर कर पा रहा है या कुछ भी कर पा रहा है। सो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, लाइक टीचर के कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली अगर हम उनकी जो उनका लाइक काइंड ऑफ सैलरी बोले या जो भी बोले, तो दैट इज वेरी लो। व्हाट वुड यू से अबाउट इट? देखो, लो तो कुछ भी नहीं होता है। अब हर किसी को अपने वर्क के हिसाब से पेमेंट मिलती है। लो तो कहीं से भी कुछ नहीं है ना। जो 1 रुपी का कॉइन है, इट्स ऑल्सो मनी। और जो करोड़ से, इट्स ऑल्सो मनी। एंड इट्स डिपेंड जस्ट ऑन द, एक नजरिए की बात जिसको कहते हैं, एक नजरिया होना चाहिए ना। वो चीज होती है नजरिया की। अब आप चाहो तो बहुत कुछ होता है तब भी कुछ नहीं इंसान को लगता है, थोड़े से में भी होता है तो उसमें बहुत कुछ लगता है। ये मैं कहना चाहती हूँ। ओके मैम। ओके। सो आपकी जो भी बातें हैं ऑब्वियसली दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग। मैम, आपसे मेरा एक और क्वेश्चन था, एंड इट इज कि आपकी लाइफ में क्या कभी कोई ऐसा मोमेंट आया व्हेन यू फेल्ट कि हाँ अब आगे नहीं हो पाएगा, एंड एट दैट मोमेंट देयर वाज अ टीचर हु मोटिवेटेड यू, एंड तो क्या कोई ऐसा कोई मोमेंट था लाइफ में, या ऐसा कोई हाँ, टीचर मुझे रहा सब। हो जिसे आप याद करते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। मेरे प्रोफेसर हैं डॉक्टर श्रवण कुमार, और उन्होंने Okay. मुझे एमएड में मुझे गाइड किया है, और लाइफ के हर मोड़ पे साथ दिया है। पढ़ाते थे सर तो यही सिखाते थे कि ऑलराउंड डेवलपमेंट मनुष्य का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही फील्ड में आगे बढ़ूं, और हर फील्ड में आपको आगे बढ़ना है। तो आज भी सर की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, बहुत अच्छा लगता है। और अब तो हम लोगों को टाइम काफी हो गया है एमएड किए हुए, मगर जो सच्चे टीचर्स होते हैं, जो आपके मार्गदर्शक होते हैं, वो हमेशा लाइफ के हर मोड़ पे आपको याद रहते हैं।
तो आज भी अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है, ज़रा-सा भी कुछ होता है, तो मैं तो तुरंत सर को रिंग करती हूँ, सर ये ऐसी प्रॉब्लम हो गई। आज भी मुझे वैसे ही गाइड करते हैं जैसे आज से इतने साल पहले क्लासरूम में सिखाया करते थे। और दैट्स अच्छा अमेजिंग लगता टू है। नो। हिज ब्लेसिंग्स आर द गॉड्स ब्लेसिंग टू मी। या टीचर और स्टूडेंट का जो बॉन्ड है ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा एक प्योर और बहुत ज्यादा स्पेशल बॉन्ड होता है। एंड अगर टीचर अच्छे मिल जाते हैं तो किसी भी स्टूडेंट का बहुत ज्यादा अच्छा डेवलपमेंट होता है इन एनी वे वी कुड से दैट। बट मैम काफी जगह ऐसा होता है, इवन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अगर आप देखो एक क्लास के अंदर देयर वुड बी ओनली फ्यू स्टूडेंट्स जो हाँ वो ये सोचेंगे कि हाँ ये टीचर जो पढ़ा रहा है वो सही है या फिर वो जो टीचर बोल रहा है वो एकदम सही है। देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु फील लाइक कि नहीं टीचर मतलब उससे उतना रिलेट नहीं कर पाते या फिर वो कनेक्ट नहीं कर पाते, तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि इसमें बेसिकली गलती कहाँ हो रही है? टीचर की तरफ से है या स्टूडेंट्स की तरफ से, या काफी बारी ऐसा भी होता है कि इसकी वजह से स्टूडेंट्स को आगे सफर करना पड़ता है क्योंकि वो फिर आगे उस सब्जेक्ट में कभी वो इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप कर पाते। तो व्हाट वुड यू हाँ, से? इसके लिए स्टूडेंट्स से एक चीज़ कहना चाहूँगी, देयर शुड बी नॉट अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कम्युनिकेशन जहाँ कम्युनिकेशन का लैक होगा, वहाँ बहुत सी बातें जो हैं क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, ना कहीं के भी स्टूडेंट्स हो, कोई भी टीचर हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो बेझिझक आपको क्लास में वो चीज़ नहीं समझ में आई, आप 2 बार पूछो, 5 बार पूछो, दोबारा से उसको पूछो, पर पूछ ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि आपको एट लास्ट जो है एग्ज़ाम क्लेरिफ़ाई करना है। तो कहीं न कहीं आपको टीचर से पूछ लेना चाहिए, कम्युनिकेशन का लैक नहीं होना चाहिए। और इंटरैक्शन इसीलिए होता है ना कि जो परफेक्ट इंटरैक्शन जो होता है, उसमें कम्युनिकेशन का कभी लैक नहीं होता यस। है ना? तो कम्युनिकेशन को परफेक्ट रखना चाहिए। Okay, ma'am. Ma'am, one more thing. You were just talking about this one thing. The overall development of a student, right? तो अगर हम आज यस। का अपना एजुकेशन सिस्टम देखें, तो मोर और लेस लाइक मैं किसी भी स्टेज पे जाऊं, एट द एंड इट इज ऑलवेज माय मार्क्स व्हिच आर गोइंग टू मैटर, नथिंग एल्स। लाइक अगर मुझे एजुकेशनली कुछ भी करना है तो बिकॉज अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए देन यू नीड मार्क्स, अगर आपको मास्टर्स में चाहिए तो मास्टर्स में तो इतना ज्यादा कंपटीशन है कि देर आर ओनली फ्यू कॉलेजेस। तो अगेन अब ये अगर हमारे पेरेंट्स ने सोचा होता कि सिर्फ मार्क्स के पीछे जाना है, तो आज शायद इतनी चीजें नहीं अचीव की होती। मैंने 5 सब्जेक्ट्स में पीजी किया है। पहले मैंने मास्टर्स इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन किया, बीएड किया, एमएड किया, एमए इंग्लिश, एमए एजुकेशन, एमए हिंदी, 5 सब्जेक्ट्स में पीजी किया, 6 बार यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है और 42 बुक्स लिखी हैं। और मैं एज अ खुद जो हूँ पढ़ाती रही हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में। तो ये सब चीजें जो हैं मैंने मार्क्स नहीं देखे क्योंकि क्या ऑलराउंड डेवलपमेंट देखा। और मैं भी अपने स्टूडेंट से यही कहती हूँ कि एक ही फील्ड में मार्क्स ओरिएंटेड मत बनो क्योंकि लाइफ के हर एक्सपेक्ट को आपको अगर मान सम्मान और प्रतिष्ठा कमानी है, तो लाइफ के हर एक्सपेक्ट पे आपको आगे बढ़ना होगा। एक चीज से कभी आपका काम नहीं चलेगा। और क्योंकि एक होता है ना ब्रॉड थिंकिंग, होती है एक नैरो थिंकिंग। आपको देखना आपको आपका रास्ता कितनी दूर है, आपको कहाँ तक चलना है। अगर आप ये सोचते हो कि अगर छोटा रास्ता अपनाया है ना, तो वो सिर्फ मार्क्स ओरिएंटेड ही रहेगा। अगर लॉन्ग रन में सक्सेसफुल होना है, तो लाइफ के हर पर्सपेक्टिव में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अपनी हॉबीज को भी आपको बढ़ाना पड़ेगा और अपनी लर्निंग को भी बढ़ाना पड़ेगा, डिग्री भी अर्न करनी पड़ेगी, बिजनेस भी करना पड़ेगा। अब तो यूथ को तो हर यूथ को स्टार्टअप करना चाहिए। अब तो ओके स्टार्टअप्स को इतना, और बल्कि आप किताब राइटिंग फाउंडेशन की ओनर दिव्या मैम को देखिए। या जस्ट 20 इयर्स की एज में उन्होंने जो है इतना बड़ा फाउंडेशन खड़ा कर दिया। तो शी इज द रियल मेंटोर फॉर एवरीवन। यस। एक जस्ट यंग बिल्कुल एज में उन्होंने इतना अच्छा पब्लिकेशन का वो काम कर रही हैं, तो ये एक स्टार्टअप है। तो ये सब चीजें सबको सीखनी चाहिए, मैम से सीखनी चाहिए। शी इज द रियल मेंटोर फॉर एवरीवन। दैट्स And I had to congratulate her for publishing such a nice book. In fact, when I said to ma'am that I need a very nice cover page, she said, okay. And really, the cover page of this book is very nice. I really want to thank her for this and your थैंक यू सो whole मच मैम फॉर publication योर team. वेरी काइंड वर्ड्स। मैम इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। लाइक मेरे पास तो अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बिकॉज दिस कॉन्वर्सेशन इज गेटिंग टू मच इंटरेस्टेड।
But ma'am, since we are lacking the time, so I would just like to ask you the message that you would like to give to our audience. Message I want to give to audience is be positive in life. Whether there is any aspect of life, up and down, you should be positive. Okay? Because neither the happiness is permanent, neither the sorrow is permanent. So just take a balance in life and do everything with a positive attitude. Thank you so much, ma'am. And And it's so nice to talk to you because we both are sharing the same name. And I hope that in future also we will have more interactions like this. sure, ma'am. Yeah. Thank you so much, ma'am. And how was your experience, like getting your book Very nice. published and everything? Very nice. So nice book published and I'm very happy with it. Thank Thank you, you so Kitab much. Writing Publication. Thank Thank you. you so much, ma'am. It was a very nice conversation. I got to interact with you, and पता चला कि हाँ सच में सेम नाम वालों में काफी सारी सिमिलैरिटीज होती है, एंड आई गॉट टू नो यू मोर. सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. थैंक यू सो मच, मैम. Thank you.